friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, if you follow my videos, we have already finished the series for UP Judicial Services pre-exams. जितने भी हमें एग्जाम पेपर्स मिले थे UP Judicial Services के प्री के, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं. And in this sequence, in today's video, we are going to discuss all the questions of international law. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए because it will be very beneficial for you in your preparation for judiciary and other legal exams. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. So friends, let's move on to the question paper. नेक्स्ट में 31. अब इसको मैच करना है. अब बताना है यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच्ड है. परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कितने जज होते हैं? 7. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में होते हैं 18. अब 18 होते हैं. इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सीज 21 है. यूएन वॉर क्राइम्स ट्राइब्यूनल फॉर यूगोस्लाविया 15 है. इसमें ठीक कौन कौन से हैं? 1, 3 and 4. B is the answer. Next one 32. On which date the statute of International Criminal Court has come into force? कब आया था ये? 1 जुलाई 2002 में. C इसका आंसर रहेगा. ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये 2015 में मिल जाएगा आपको. Next 133. Under which article of the UN Charter the Security Council has power to use force against a state? देखिए बताओ क्या ये रिपीट क्वेश्चन नहीं है, डिट्टो रिपीट क्वेश्चन है. और इसका आंसर क्या रहेगा? आर्टिकल 42. बी इज द आंसर. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है. नेक्स्ट 134. हु कैन रिक्वेस्ट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टू गिव एन एडवाइजरी ओपिनियन ऑन एनी लीगल क्वेश्चन? तो जनरल असेंबली कर सकती है एंड मेंबर भी करवा सकते हैं थ्रू जनरल असेंबली. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? आर्टिकल 96 ऑफ यूएन चार्टर में. नेक्स्ट 135. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द यूएन परफॉर्म्स लेजिस्लेटिव फंक्शन? That is General Assembly. A is the answer. Next 136. A new member of UN is admitted by General Assembly and Security Council. General Assembly on the positive recommendation of the Security Council including concurring votes of permanent members. तो D इसका आंसर रहेगा. Next 137. The Secretary of United Nations is appointed by General Assembly recommendation of Security Council. B इसका आंसर रहेगा. Next 138. Little Assembly is a body created by General Assembly. B is the answer. Next 139. Which of the following countries is not a member of SAARC? तो इंडिया, भूटान, पाकिस्तान है, सिंगापुर नहीं है. A इसका आंसर रहेगा. Next 140. Which one of the following states had proposed the creation of Troika in place of Secretary General of United Nations? किसने किया था? USSR ने किया था. उस टाइम की बात, जीके का क्वेश्चन है ये. A इसका आंसर है. Next 141. Under which of the following the former president of Saddam Hussein has been granted the status of prisoner of war? Under कौन सी कन्वेंशन है वो? जिनेवा कन्वेंशन है. B is the answer. इसलिए पूछ रहे हैं कि जो prisoner of war है उस पर कौन सी कन्वेंशन है? जिनेवा कन्वेंशन. Next 142. What is the name of anti-terrorism law enacted by USA just a week after September 11 attack? So that was US Prevention of Terrorism Act. B इसका आंसर है. Next 143. Which country has declared in December 2003 to destroy all weapons of mass destruction and abandon all programs to develop them? That was Libya. But ऐसा हुआ नहीं. आज भी लीबिया में जो सिविल वॉर चल रहा है. Next 144. First Muslim woman to win Nobel Prize in its 102-year history is? That was Shirin Ebadi. C was the answer. की बात रिसेंट में होगा न्यूज़ में. As we know, International Convention for Suppression of Financing of Terrorism. C is the answer. Next 121. Which article of UN Charter relates to domestic jurisdiction? अब बताओ क्या ये रिपीट क्वेश्चन नहीं है? डिट्टो रिपीट क्वेश्चन है. आर्टिकल 27 is the answer. 23 किससे रिलेटेड है ये? सिक्योरिटी काउंसिल से. एंड आर्टिकल 51 पावर ऑफ सेल्फ डिफेंस 22 ऑल मेंबर्स. 72 क्या है? इकोसोक के लिए है.
Next 122, which article of UN Charter provides for expulsion of member state? That is Article 6. B is the answer. Article 1 में क्या है? Purpose of UN. 48, enforcement of measures. Article 50 में बता ही दिया अभी, self defense. Next 123, the budget of United Nations is approved by General Assembly. B is the answer. Next 124, the legality of uniting for peace resolution of the General Assembly has been upheld by International Court of Justice in certain expenses of United Nations case. A is the answer. Next 125, the United Nations enjoys immunities and privileges in the territories of its member states. कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 105. C is the answer. Next 126, of which of the following international judicial institution the seat is not at the Hague? एक में किसकी सीट नहीं है? इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सीज की नहीं है. डी इज द आंसर. बाकी इन सब की हेग में ही है. इसकी सीट कहाँ पर है? हैम्बर्ग. और ये कहाँ है? जर्मनी. अब हेग यहाँ पर पूछा गया, हेग कहाँ पर है? हॉलैंड. और क्या बोलते हैं? नेदरलैंड्स. नेक्स्ट 107, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन परसुएंस ऑफ द फॉलोइंग. क्या थी? हेग कन्वेंशन ऑफ 1899 and 907 is the answer. Next 128, which one of the following is not specialized agency of UN? Okay, ditto question, repeat question 2012 पेपर देख लीजिए. यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, यूनिसेफ है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन नहीं है. डी इसका आंसर रहेगा. Next 129, a non-member of United Nations can become a member of Statute of International Court of Justice on the recommendation by Security Council या General Assembly या फिर on the condition to be laid down by the General Assembly on the recommendation of Security Council. C इसका आंसर रहेगा. Next 130, on which date did the General Assembly of United Nations unanimously adopt for the first time a resolution and an annexed plan of action on global counter-terrorism strategy? तो उस टाइम का रिसेंट क्वेश्चन में पूछा हुआ है. ये आंसर था September 8, 2006. Next 131, the optional clause in para 2 of article 36 of statute of international court of justice is a compulsory है या फिर voluntary? is compulsory. B is the answer. Next 132, in the event of a dispute as to whether the international court has jurisdiction or not, the matter shall be settled by the Security Council के General Assembly करेगी decision of International Court of Justice. Only International Court of Justice. C is the answer. Next 133, which one of the following organization deals with refugees? तो यूनेस्को तो जो हेरिटेज साइट्स हैं उसको डील करता है. स्वापो क्या है? साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन. ईसी क्या है? यूरोपियन इकोनॉमिक कमिटी. तो कौन करता है इसको, रिफ्यूजीज को डील? यूएन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज. आर से रिफ्यूजीज. तो बी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 134, विच आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस? 51 अभी डिस्कस किया था, देखिए पूछ लिया ना क्वेश्चन उस पर ही. नेक्स्ट 135, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? देखिए पहले बने थे परमानेंट वाले, वो थे ट्रिगवेली. ए इज द आंसर. और ये कहाँ के थे? ट्रिगवेली नॉर्वे, कर्ट वाल्डेम थे ऑस्ट्रिया के, यूथान थे म्यांमार के. राइट. नेक्स्ट 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ? यूनाइटेड नेशन की कौन सी नहीं है? तो यूनाइटेड पोस्टल यूनियन है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड है, यूनिसेफ. यूनिसेफ बोलते हैं ना. तो यूनाइटेड नेशन का तो यूनाइटेड नेशन का ही है. ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ये भी है. इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन किसका? ये वर्ल्ड बैंक की एजेंसी है. तो यूएनओ की नहीं है. इसका आंसर क्या रहेगा? डी. नेक्स्ट 12, द पावर एंड फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशन आर डिवाइडेड अमंग हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑर्गन्स? टोटल कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूएनओ के? दे आर 6. हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मेंशन किया गया है आर्टिकल 7 में. 2015 में भी पूछा गया था, ये रिपीट क्वेश्चन है. तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिर आईसीजे एंड सेक्रेटेरिएट. ठीक है. तो दे आर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स. नेक्स्ट 13, द रियल पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द यूएन सेक्रेटरी जनरल लाइज विद द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. डी इसका आंसर रहेगा.
नेक्स्ट है 14, हु वाज द इंडियन कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन? वो थे शशि थरूर, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 15, इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो डेवलप थ्रू स्टेट प्रैक्टिसेस, इट इज नोन एज इंटरनेशनल कस्टमरी लॉज, सी इसका आंसर रहेगा। 39 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन? तो अभी मैंने जैसे बात की थी आर्टिकल 7 में ऑर्गन्स के बारे में बात की गई है, तो इकोसोक है, आईसीजे है, टेस्टशिप काउंसिल है, डब्ल्यूएचओ नहीं है, डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 40, हु कैन रिक्वेस्ट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टू गिव एडवाइजरी ओपिनियन ऑन एनी लीगल क्वेश्चन? देखिए 2013 में भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। दिस इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 96 ऑफ यूएन चार्टर। तो एनी मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कर सकती है, उसके ऑर्गन कर सकते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल कर सकती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी, जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ऑप्शंस में सी ठीक है। नेक्स्ट 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रीजॉइंड यूनेस्को in 2003 after 19-year absence? That was USA. कोई रेलेवेंसी नहीं है इस क्वेश्चन की, नॉट रेलेवेंट नाउ। उस टाइम पे रेलेवेंट नहीं था, 2003 का पूछ रहे हैं, बताओ। नेक्स्ट 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन? कितनी पूछेंगे? IBRD है, यस। FAO है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यस। यूएन ह्यूमन राइट कमीशन, यूएन का, तो यूएन का ही रहेगा ना। नेक्स्ट 66, इन यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल इज अ सब्सिडरी ऑर्गन ऑफ जनरल असेंबली, इज द आंसर। अब देखिए ऊपर पूछा गया कौन सा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, वहाँ पे ह्यूमन राइट काउंसिल भी था, यूएन ह्यूमन राइट। देखिए आप पूछ लिया ना सब्सिडरी ऑर्गन है किसका? जनरल असेंबली का। तो एक तो ये तो रूल आउट हो ही गया, बचा क्या था वहाँ पे? बाकी तो वो लिखे ही हुए थे। नेक्स्ट 67, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 18 जजेस, ए इसका आंसर है। नेक्स्ट 131, अंडर विच आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर द सिक्योरिटी काउंसिल हैज द पावर टू यूज फोर्स अगेंस्ट अ स्टेट? That is Article 42. D is the answer. Next 132. The judgment of International Court of Justice is to be signed by the President and Registrar of the Court. D इसका आंसर रहेगा। Next 133. Consider the following statement. International law is not a law at all. That is wrong. International law तो law रहेगा ना। International law has no judicial system to enforce the law by applying sanction. ठीक है, तो इसमें ठीक कौन सा है? ऑफ द अबव 2 is true, 1 is false, B is the answer. Next 142, on which date statute of International Criminal Court has came into force? ये आया था 2002 में, on 1st July, C is the answer. Next 143, where the UNESCO's headquarters is situated? कहाँ पर है? ये है पेरिस में। यूनेस्को का कहाँ पर है? पेरिस में, D is the answer. नेक्स्ट 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन? तो कितने ऑर्गन्स हैं? 6 ऑर्गन हैं। कौन कौन से हैं? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसोक, ट्रस्टीशिप काउंसिल, आईसीजे एंड सेक्रेटेरिएट। ठीक है ना, तो ये देखिए आईसीजे है, इकोसोक है, ट्रस्टीशिप है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, डी इसका आंसर रहेगा। Next 44, the General Assembly can request the International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal question. Yes. General Assembly may authorize other organs, specialized agencies of the UN to seek such advice from International Court of Justice. Yes, बिल्कुल ठीक है। Security Council has independent power to seek advisory opinion on legal question from International Court of Justice. Yes, बिल्कुल ठीक है। सब काम मेंशन किया गया आर्टिकल 96 ऑफ UN चार्टर में। ओके, तो तीनों ठीक हैं, तो आंसर क्या रहेगा? डी, ऑल आर करेक्ट। Next 45, what is the name of 6th committee of UN General Assembly? This is legal committee, आंसर रहेगा A। Next 46, the year 2013 has been declared by the UN General Assembly as International Year of, उस टाइम पर था ये वाटर कॉपरेशन। ठीक है ना, एंड आज के टाइम में 2023 को क्या डिक्लेयर किया गया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ज्वार बाजरा, 20 का आंसर रहेगा। 48, the idea of peace building commission was raised by Kofi Annan. कोफी अनन कौन थे? फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल। दैट इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, सी इसका आंसर रहेगा। 51, ऑन विच डेट इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन? कब बना था?
30 अक्टूबर 1945 को साइन किए थे इंडिया ने। 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट 54, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन। उस टाइम पर तो ये अशोक कुमार मुखर्जी थे, आज के टाइम पे रेलेवेंट नहीं है, बट आज के टाइम पे कौन है अभी? रुचिरा कंबोज। और क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज शी इज द फर्स्ट फीमेल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन यूएन। और ये कब बनी थी? अगस्त 2022 में। तो इसमें से क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 55, इन विच सिटी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इज बेस्ड? दैट इज इन न्यूयॉर्क। डी इसका आंसर है। नेक्स्ट 56, विच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड एज जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन अप्रैल 2012? तो वो थे जस्टिस दलवीर भंडारी। इवन हमने डिस्कस किया है 2015 के एग्जाम में भी उसमें पूछा गया था कि फर्स्ट कौन था। फर्स्ट है नागेंद्र सिंह। अभी जो करंट में दलवीर भंडारी वहीं पर ही है। दलवीर है ये, वीर नहीं है। ओके, 20 का आंसर है। नेक्स्ट 57, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? कौन सा नहीं है? मालदीव है, अफगानिस्तान है, भूटान, म्यांमार नहीं है। सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 58, 5-year term फॉर द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज बीन फिक्स्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। 20 का आंसर रहेगा। नेक्स्ट 59, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर फ्रेंच एंड इंग्लिश। ए इज द आंसर। 60 को डिलीट कर दिया गया था, 61 भी डिलीट कर दिया गया था बिकॉज ऑप्शंस ठीक नहीं थे, क्वेश्चन भी ठीक नहीं था। नेक्स्ट 62, पोप बेनेडिक्ट 16 अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन। तो अब तो ये रिटायर की जगह ये दुनिया से रिटायर हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। इनकी डेथ हो चुकी है 31/12/2022 में, मतलब 31 दिसंबर को इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, नॉट रेलिवेंट नाउ। ये आ सकता है कि ये कौन से जो ये बेनेडिक्ट थे कब से कब तक रहे थे, तो ये 5 से और 13 तक रहे थे, पूछ सकते हैं। अभी रिसेंटली डेथ हुई है। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये थे जर्मनी के। नेक्स्ट 63, ऑन 29 नवंबर 2012 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वोटेड टू मेक पैलेस्टाइन एज नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट। सी इसका आंसर रहेगा। उस टाइम के रिसेंट में है ये। नेक्स्ट 65, विच ओरिजिनल मेंबर ऑफ यूएन वाज नॉट represented at the San Francisco Conference in 1945 and did not therefore sign? तो कौन सा था वो? That was Poland. C is the answer. Next 66, tripartite character is the outstanding feature of ILO. A is the answer. और देखिए यहाँ स्टार्ट हो गया इंटरनेशनल लॉ. ओके, क्वेश्चन 81, UN member states have agreed on August 15 on sustainable development goals by majority vote, consensus या convention. कंसेंसस से हुआ था 15 की बात है, मतलब यूएन के जो भी रिसेंट नोटिफिकेशन रेजोल्यूशंस या फिर कोई इवेंट्स हैं उनको देखिए, उनमें से क्वेश्चन आ सकता है. 20 का आंसर रहेगा. नेक्स्ट 82, वर्ल्ड क्लाइमेट समिट 2015 स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन. वर्ल्ड क्लाइमेट समिट भी 2015 की बात करें, 2022 का कब हुआ था? तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी इसकी. शर्म अल शेख में हुआ था. COP 27 शर्म अल शेख इजिप्ट में. ठीक है, और N23 का कहाँ पर होना है? दुबई में. रिपीट क्वेश्चन आया हुआ है 15 से 16 में. ठीक है. नेक्स्ट 83, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ्टन टर्म्ड एज चाइल्ड ऑफ वॉर. किसको बोलते हैं? लीग ऑफ नेशंस को, बिकॉज वर्ल्ड वॉर के बाद ही इसकी स्थापना की गई थी. सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 84, पर्पस ऑफ यूएन इज वर्ल्ड पीस. इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय, किसने कहा था? ये कैल्सन ने. 20 का आंसर रहेगा. नेक्स्ट 85, द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इज सिचुएटेड इन. कहाँ पर हेडक्वार्टर यूनियन पोस्टल यूनियन का? बर्न. और बर्न कहाँ पर है? बर्न है स्विट्जरलैंड में. नेक्स्ट 86, इन विच द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर प्रोवाइड्स फॉर द एक्सपल्शन ऑफ मेंबर स्टेट. दैट इज आर्टिकल 6. 20 का आंसर रहेगा. नेक्स्ट 87, नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर. कितने ऑर्गन हैं? दे आर 6 ऑर्गन्स. और आर्टिकल 7 में ये प्रोवाइड किया गया है. कौन कौन से हैं? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ICJ एंड
सेक्रेटेरिएट हो गए 6। नेक्स्ट 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर कितने हैं 15, 5 परमानेंट है एंड 10 नॉन परमानेंट है। तो 5 परमानेंट कौन कौन से हैं? चाइना, यूके, यूएसए, रशिया एंड फ्रांस। ओके, तो इसमें कौन सा नहीं है? ऑब्वियसली जापान नहीं है परमानेंट मेंबर। डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 89, व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इट इज 9 ईयर। और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? ये प्रोवाइड किया गया आर्टिकल 13 ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट में। नेक्स्ट 90, द फर्स्ट इंडियन अपॉइंटेड एज जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज जस्टिस नागेंद्र सिंह। बी इसका आंसर रहेगा। अभी करंट में कौन है इंडिया के जज वहां पर आईसीजे में? दलबीर भंडारी। राइट। नेक्स्ट 91, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिचुएटेड? इट इज इन हेग। सी इसका आंसर रहेगा। हेग कहाँ पर है? हॉलैंड, या फिर क्या बोलते हैं इसको? नेदरलैंड। और इसको क्या बोलते हैं? पीस पैलेस। नेक्स्ट 92, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ यूएनओ द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन हैज बीन प्रोवाइडेड? कौन सा आर्टिकल है? यह है आर्टिकल 1, पहले आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट 93, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ? तो टोटल है 15, जो इनिशियली 11 थे बट 1963 में रेजोल्यूशन पास किया गया और जो इसकी जो नॉन परमानेंट मेंबर्स की जो काउंट है उसको बढ़ा के 15 कर दिया गया। तो 5 हैं अफ्रीका एंड एशिया से, ठीक है, 1 है ईस्टर्न यूरोप से, 2 है वेस्टर्न यूरोप से और 2 हैं लैटिन अमेरिका से, ठीक है। तो इस तरीके से नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है बनाए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं हर 2 साल में। देखिए नेक्स्ट पूछ ही लिया 94, व्हाट इज द टर्म ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ? 2 साल। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 95, द फर्स्ट सेशन ऑफ यूएनओ वाज हेल्ड ऑन 10 जनवरी 1946। बी इज द आंसर। रिपीट क्वेश्चन है ये। 96, which one of the following is the official language of International Court of Justice? That is French and English. C is the answer. Next 103, World Refugee Day is observed on 20th June. Again पूछा गया 2016 में, repeat question है ये। Next 105, total number of members in European Union is, now it is 27. Earlier it was 28. After Britain exit. सुना है ना ये word? ब्रेक्सिट, मतलब ब्रिटेन एग्जिट हो गया, उसके बाद फिर से वापस से ये 27 मेंबर्स हो गए यूरोपियन यूनियन में। तो आज के टाइम में 27 मेंबर्स हैं। 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? ट्रिग्वे ली नॉर्वे के थे, यूथांत म्यांमार के, कोफी अनन घाना के एंड कर्ट वाल्डेम ये कहाँ के थे? ये थे ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, ओके, ऑस्ट्रिया के थे, स्वीडन के नहीं थे। तो उसमें रॉन्ग कौन सा हुआ? बी। अब इनमें कॉमन क्या है? कौन है ये लोग? ये रह चुके हैं एक्स या फिर फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। ट्रिग्वे ली वाज द फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल। नेक्स्ट 108, हु हैज डिस्क्राइब्ड इंटरनेशनल लॉ एज पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी? ये हॉलैंड नहीं है, हॉलैंड होना चाहिए इधर। इसका आंसर क्या है? ऑस्टिन। नेक्स्ट 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्स द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? कौन इलेक्ट करता है? जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल दोनों करते हैं। तो बोथ इसका आंसर रहेगा। डी इज द आंसर। 110, हु से इंटरनेशनल लॉ इज अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस? इतना इजी क्वेश्चन है ये। देखिए हॉलैंड है ये, पॉलॉक है ये, स्पेलिंग मिस्टेक्स है। बी इसका आंसर है, हॉलैंड ने कहा है ये। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब होता है? ऑन 20th जून। ए इज द आंसर। जीके का क्वेश्चन है ये। अगला भी 97, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव बिकम 35th मेंबर ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम? MTCR। इंडिया बना था 2016 में। ए इसका आंसर है। नेक्स्ट 98, ऑन विच डेट इंडिया रेटिफाइड द कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज 1997? ऑन 4 February 2016। डी इज द आंसर। नेक्स्ट 99, ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन can be suspended from exercising the right of membership by the General Assembly on recommendation of Security Council? D इसका आंसर रहेगा। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया इंटरनेशनल लॉ, ओके।
Question 101. The action required to carry out the decision of Security Council for maintenance of international peace and security shall be taken by which one of the following? That is, all the members of UN or some of them as Security Council may determine. A is the answer. और ये कहाँ पर मेंशन किया गया है? ये प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 11 ऑफ यूएन चार्टर में. नेक्स्ट 102. द ऑथर ऑफ डी जूरे बेली एक्ट पैसिस कौन थे? ग्रोशियस. सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 103. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ यूएन परफॉर्म लेजिस्लेटिव फंक्शन? लेजिस्लेटिव फंक्शन किसके पास है? जनरल असेंबली के पास. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 104. विच वन द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर रिलेट्स टू डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन? आर्टिकल 27. ए इज द आंसर. Next 107. State is admitted to membership of United Nations by General Assembly after the approval of Security Council. B is the answer. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? ये प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 4 क्लॉज 2 में ऑफ यूएन चार्टर. नेक्स्ट 108. Which one authority of the following is entitled to task of enforcement of judgment of International Court of Justice? That is Security Council of the UN. बी इसका आंसर रहेगा. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर 109 है द फर्स्ट अरेस्ट वारंट बाय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वाज इशूड इन. तो ये किया गया था 2005 में. कौन से केस में किया था? जो युगांडा में सिविल वॉर चल रहा था उसके बेस पर किया गया था. और लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी के 5 जो हेड हैं उनके खिलाफ ये अरेस्ट वारंट जो है निकाला गया था. सी इसका आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 17. व्हेन द फर्स्ट सेशन ऑफ यूएन असेंबली वाज हेल्ड? पहला सेशन कब हुआ था? 10 जनवरी 1946 में. ए इज द आंसर. नेक्स्ट 18. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ यूएन परफॉर्म्स लेजिस्लेटिव फंक्शन? तो कौन सा है? वो जनरल असेंबली परफॉर्म करती है. सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 119. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर प्रोवाइड्स दैट स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे इज बेस्ड ऑन द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस? That article is 92. C is the answer. Next 120. Under which article of UN Charter the member of UN have agreed to abide by the decision of Security Council? It is Article 25. B इसका आंसर रहेगा. Next 121. The budget of International Court of Justice is approved by the General Assembly. A is the answer. Next 122. The member of Economic and Social Council are elected for 3 years. How many members are elected every year? 1/3. तो C इसका आंसर रहेगा. Next 123. Which one of the following mentions that everyone has right to a nationality? तो कौन सी कन्वेंशन? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. डी इसका आंसर रहेगा. अगर आपने इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस करने हैं और अच्छे वाले क्वेश्चंस करने हैं तो इसके लिए आप जो मैंने यूजीसी नेट में जो इंटरनेशनल लॉ की जो है स्पेसिफिक वीडियोस बनाई हुई हैं तो वो आप जो है ज़रूर कीजिएगा. और उसके अलावा यूके के जो पेपर्स हैं उसमें मैंने इंटरनेशनल लॉ के अलग से वीडियो बनाई थी, वो भी आप कर लीजिए. फिर 124. सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर मेंशन इन द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ स्टैट्यूट. तो कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल 38 of International Court of Justice. Next 125. Each member of Security Council shall have 1 representative. और ये कहाँ मेंशन किया गया? मेंशन किया गया है आर्टिकल 23 ऑफ यूएन चार्टर में. Next 126. Who has said we are a world in pieces? We need to be world at peace. किसने कहा था? ये अंतोनियो गुतारेस ने. सी इज द आंसर. अंतोनियो गुतारेस कौन है अभी? ही इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन. ही इज फ्रॉम पुर्तगाल. ऑलराइट. नेक्स्ट 127. व्हेन डिड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूएनडीपी केम इनटू इफेक्ट? कब आए थे? जनवरी 2016 में. सी इज द आंसर. Next 128. International Panel on Climate Change is the leading international body established by
यूएन एनवायरमेंटल एंड वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन बोथ दोनों द्वारा किया गया था ये, तो डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 129, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इट इज सिक्योरिटी काउंसिल, डी इज द आंसर। Next 130, the basis of UNO is sovereign equality, economic and social advancement, culture, economic and advancement of all people. It is sovereign equality, A is the answer. So friends, अभी तक जितने भी एग्जाम पेपर्स हुए हैं यूपी जुडिशियल सर्विसेज में प्री के लॉ के एग्जाम पेपर्स, उसमें आए हुए इंटरनेशनल लॉ के सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक। एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द एफर्ट्स काइंडली गिव अ सुपर थैंक्स, मिनिमम स्टार्स फॉर 20। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.